into 1. Okay, so multiplexer क्या करता है basically, ये मल्टीप्लेक्सर, ओके, उसको म्यूएक्स भी लिखते हैं मल्टीप्लेक्सर, ओके, इट हैज many inputs, okay, many inputs means say it has 2 power n inputs and 1 output, okay, 1 output. So now this multiplexer has some select lines, okay, select lines, say n select lines, okay, say s0, s1, so on, okay, up to sn, okay, or just n lines, okay, n lines. Is n lines को we call it select lines or data selectors, okay. So by the condition of this select lines, okay, we can bring one input at output at a time, okay. So किसी भी by choosing the values of select lines, select variables, okay, I'm writing here s0, s1, it can be a, b, c, d also we can write. So if there are one select line, okay, if there is a one select line, say s0, okay, so n equal to 1, then we can select two inputs, okay. So there are 2n input lines and n select lines, okay. So if n is equal to 1, then I can select maximum 2 inputs, okay. If n is equal to 2, there are 2 select variables, I can select maximum 2 power 2 4 inputs. If n is equal to 3, okay, then 2 power 3 maximum n input I can select, okay. So by हाँ सर इसका मतलब n का वैल्यू जो होगा उसी हिसाब से हम लोग इनपुट चूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल का सेलेक्ट लाइन होगी ए बी, ओके, उतना ही तो वो मैक्सिमम है। जैसे मुझे यहाँ पर मेरे पास 2 सेलेक्ट लाइंस है और 5 डेटा है, तो 5 डेटा को 2 सेलेक्ट लाइंस यहाँ से इधर नहीं ले जा पाएंगी, ओके, यू नीड एटलीस्ट 3, ओके ओके। सर n की वैल्यू किस पे डिपेंड? अभी n सेलेक्ट लाइंस, n वेरिएबल्स है ना, बता रहे हैं ना, n अभी बताएंगे पूरा, अभी n वेरिएबल्स हैं, ओके। अगर एक n एक है, हमारे एक वेरिएबल है, so I can bring two datas, okay. So what multiplier does, okay, it steers one input at output at a time, okay. For example, Sir, for example, your n is basically the number, no? and number of select lines, okay. These are select lines, these are select lines, okay. You also call them data select means these lines will select data कि कौन सा data यहाँ पर आएगा. For example, if I have a, so this is called also n into 1 multiplexer, okay, or 2n into 1 multiplexer, 2 into n 1 multiplexer, okay. So 2n में से you have 2 input lines and you get one output. For example, if I want to draw 2 into 1 multiplexer, okay, so generally the multiplexer symbol they are drawn like this. So these are multiplexer some symbol, okay. Now if I one select line s0, okay, then it is called 2 into 1 multiplexer, okay. So I can bring max two input data here, i0 i1, okay. So the data are generally written here. Suppose there are four data, so we write i0 i1 i2 i3 i4, okay. Or we sometimes we also write 0 1 2 3 4, okay. So these are data, number of data, okay. Now so you have one select lines, okay, so you have 2 datas and you have one output, okay. Now if I see the logic circuit, okay, of this multiplexer, so how it brings one input at output. So the logic circuit of this multiplexer is given by, it has a 2:1, so it has a 2 diodes, 2 this AND gates, okay. Now I have a variable s, okay. Now what will happen, so if s is equal to 0, okay, s can be 0, s can be 1,
Okay, accordingly I'll get whether I0 will come or I1 will come. Okay, so what is the circuit diagram? Suppose I have two lines. I have two lines I0. Okay, I have two of I1. Okay, I have one variable S. So what I'll do, 0 S, sorry, this is I will invert this signal. Okay, and then it will go to the here. Okay, it will go to the here. So what will the output here at this gate? What will the output here at this point? What is the output? I not into S bar. Very good. I not into S bar. Okay. Similarly, if I take output of here, what is the output here? I1S. I1S. Okay, very good. Now, if I put a OR gate here, okay, so this is my final output. Okay, so my output is what? I0 S. दिख रहा है ना? I0. मैं लिख रहा हूँ. Output. This is Y. So this is Y output, and Y is given by I0 S bar plus I1 S. Okay, so this is the output of 2-in-1 multiplexer. Now whether you want to bring I0 here or I1 here. Okay, so that depends on value of S. If S is 0, okay, or S is 1. So if S is 0, then what will be the value of Y output? If S is 0. If S is 0, this term 0. Okay, yes, S is 0, this become S bar become 1. Okay, so this term 0, this become 1. So I0. So what will get output? I0. Okay, now similarly, if you put S is equal to 1, then you get output what? I1. So in this way, by controlling this input, okay, this is a control input, you can bring one output, okay, one input at a time to the output. Okay, so this was the example of सर यहाँ पे एस 0 बोला गया तो इनका वैल्यू तो 0 हो गया, तो 2 टू द पावर 0 मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। इनका वैल्यू 0 का है। n एक लाइन है ना, s 0 तो s है। अच्छा चाहो तो तुम इसको a लिख दो, वेरिएबल है तो। यस सर, ओके, चाहो तो तुम इसको या तो a लिख दो, b लिख दो, c लिख दो, कुछ नहीं है, मैंने s 0 लिखा था। ओके, सो यू कैन राइट a b आल्सो। सो दिस इज योर सर ये लास्ट एंड पे और गेट में बबल लगा है क्या? बबल नहीं लगा है, और गेट खाली वो और है, और ओके तभी ऐड हुआ। ओके सर, तभी ऐड हो गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली दिस इज अ 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, इफ आई वांट टू मेक 4-in-1 मल्टीप्लेक्सर, सो ये 2-in-1 का आपने बना लिया था ना डायग्राम? यस सर। ओके, नाउ इफ आई वांट टू मेक 4-in-1 मल्टीप्लेक्सर, सर into 1 means into 1 का मतलब into मतलब 4-to-1, 4 है आपका इनपुट और आउटपुट है आपका 1, लिखने का तरीका है। ओके, सो दिस इज योर, नाउ for 4 input I need 2 select lines. Okay, so say this is S1, say this is S0. Okay, and I have four inputs. Okay, so 0, 1, 2, 3. Okay, you can also write this is I0, you can write I1, I2, I3. Okay, and I have one output Y here. Okay, now suppose I want to bring, so I have now this two variables S1, S2. Okay, so this is the most significant. Okay, sometimes it is written here 1 is written 1 here or 0 here. Okay, or sometimes it will be written that it is MSB and this is LSB. So when you make a table, MSB should come first. Okay, and then the second is S0. Okay, now the value of S1 can be what? 0, 0, 1, 1. This can be 0, 1, 0, 1. Okay, and now if I have four inputs, one is what? I0, I1, I2,
I3. Okay, so now my output here, output not output, if the terms AND gate, okay, not final output. Now the final output will be sum of these all things. So what will get? This is S1 bar. Okay, this is S0 bar and I0. Okay, terms. So it will be 0. That means S1 bar, and this is S0. This will be I1. Okay, this will be what now? 1 means S1, S0 bar, I2, and this will be what? This will be S1, S0, I3. Okay, and my final output Y will be what? Some of these things. So if I want to write my final output Y, so I'll get what? S1, S10, S1, S1 not, I0. Okay, plus S1, S0, I1 plus S1, S0, I2 plus S1, S0, I3. Okay, now you can check if you put 0 0 here. Okay, all the terms will become 0. Only you get I0. Okay, so if this, for this condition you get only I0. Okay, for this condition. And if you take 0 1 condition, okay, you'll get only I1. Okay, similarly if you take this condition, you get I2 and I3. Okay, so depending on these variables, the variable control that which input will be at output. Okay, so this is a 4-into-1 multiplexer. So generally multiplexer को ऐसे ड्रॉ करते हैं. अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है मल्टीप्लेक्सर का, जैसे मैंने 2-into-1 का मैंने ड्रॉ किया था. यू कैन आल्सो ड्रॉ फॉर 4-into-1 आल्सो. ओके, सो लेट अस ड्रॉ फॉर. इसके सर ये थर्ड कॉलम कैसा बन रहा है सर? गेट है क्या मतलब? थर्ड कॉलम मैंने बना लिया है आपकी सुविधा के लिए. अभी ये क्या है? ये क्या है? S1 बार, S0 बार. ओके, और ये I0 है. तो सम जो फाइनल टर्म तो सब सम होके आती है ना, जैसे मैंने फर्स्ट में करके दिखाया था. भी आपको अगर आउटपुट याद नहीं है कि 2-into-1 का कैसे लिखते हैं, 4-into-1 का कैसे लिखते हैं, तो मैंने एक टेबल बना दिया ताकि हमेशा आप चाहे कितने भी वेरिएबल हो ऐसे टेबल बना लेना. ऐसी टर्म बना तो के 3 इनपुट एंड गेट है सर फिर? हाँ, 3 इनपुट एंड गेट है वो? 3 इनपुट कहाँ पे? वो एंड गेट हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 टर्म. 4 थे ना पहले. 2-into-1 में 4 एंड गेट थे, 2 एंड गेट थे. अभी 4-into-1 है तो 4 एंड गेट होंगे. फिर 4 एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो और से सम हो जाएगा. बेसिकली ये सम ही तो हो रहा है. नहीं ये ईच एंड गेट ये एंड गेट है. बात कर रहा हूं. ईच हाँ, ये सर, वो हाँ column 3 में. में यस इनपुट Okay. इनपुट 3 है. ईच इनपुट में 3 होंगे. ओके, उसमें 2 थे, इसमें 3 इनपुट होंगे. 2 वेरिएबल है सर मतलब सर कोई भी नंबर हम मेरा मल्टीप्लेक्सर हो तो इसी फॉर्मूले से वो उसका आउटपुट निकल जाएगा. बिल्कुल इस तरह से. बिल्कुल इसी तरीके से निकाल के आप. ओके, ये टर्म्स लिख दो, उनका सम कर दो. चाहे 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो. स्ट्रक्चर कैसा होगा उसे जानने की जरूरत नहीं. स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है. ओके, चाहो तो आप एक बार 4-into-1 का ड्रॉ करके देख लीजिए. हाँ, 3 का भी बनाया, लेकिन अगर 4 वाला आया तो 2 पहले का निगेशन लेना है कि कैसे? मतलब ये फॉर्म में 4 का भी जैसे मैंने एंड गेट का लिया था पहले बनाया था. अब देख लो 4 को कैसे बनाएंगे. वैसे एग्जैक्टली सेम वही बनाएंगे. ये पहले एंड गेट का आउटपुट ये होना चाहिए. तो ये तभी होगा जब आप उसमें S1 S2 को इन्वर्ट करके भेजोगे I0 के साथ में. फिर इसमें खाली सेकंड में एक S1 को इन्वर्ट करोगे, थर्ड में किसको इन्वर्ट करोगे? S0 को इन्वर्ट करोगे, लास्ट में किसी को इन्वर्ट नहीं करना है. बस 2 ही वेरिएबल्स, तो 2 ही हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 4 आप बना दो. 4 आप बन जाएगा क्या छोटी जगह में? सो छोटा बनाते हैं. ठीक है, सो यू गेट 1 एंड गेट. ओके, सेकंड एंड गेट, थर्ड एंड गेट, फोर्थ एंड गेट. ओके, अब इनमें डाटा देना ही है. फर्स्ट में आपको I0 देना है, सेकंड में आपको I1 देना है, इसमें I2 देना है, इसमें I3 देना है. अब ये दो सेलेक्ट लाइन है तो 2 वेरिएबल और देने पड़ेंगे. अब इन्वर्ट करके देने हैं कि विदाउट इन्वर्ट करके देखना पड़ेगा. तो दिस इज नाउ फर्स्ट. So I have S1, I have S0. Okay, so last term is S1 S0. Okay, so last में तो क्या हो जाएगा? This will go as it is. This will go as it is. Okay, and this will also go as it is. ठीक है? सर हाँ, बोर्ड शो नहीं हो रहा. कौन सा? इधर आपने ये वाला शो हो इनपुट रहा दिया है? है. सर उधर इनपुट साइड शो नहीं हो रहा. अच्छा, ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं.
इसको इसको रब कर दूं क्या मैं? इसको रब कर दूं ना? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन कौन बता रहे हैं ना, पहले मल्टीप्लेक्सर बताते हैं, फिर एप्लीकेशन बता रहे हैं। ओके, सो नाउ वी हैव 1 AND gate, 2 AND gate, 3 AND gate, 4 AND gate, I0, I1, I2, I3। ओके, सो इसमें हमको चाहिए I3, S1, S0। ओके, तो इसमें दे दो। ओके, अब लाइन खींच दो, एक है आपकी S1 की, एक S0 की है। ओके, इसमें आपको देना है, एक S1 देना है, एक S0 देना है। ओके, नाउ इसमें क्या, उससे पहले वाले में क्या है, आपकी टर्म्स क्या होती है? 0 0 1 1 1 0 1 0 1। ओके, तो 1 1 दे दिया, 1 0 देना है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आपको S0 बार देना है, तो एक इन्वर्टर लगा दो यहाँ पर, एक इन्वर्टर लगा दो। सो दिस विल बी ऑन योर this one, and he'll be S1. So you are giving S1 and S0. So S1, S0, and I2. Okay. Similarly, here this term is what? 0 1. You have to go S. तो यहाँ पे इन्वर्टर लगा दो, इन्वर्टर लगा के आप इसको यहाँ दे दो, और यहाँ से हमको S0 चाहिए, तो इसे यहाँ से नीचे से उठा लो, उठा के इसको दे दो। So this will become what? This will become your this term na, this term is your S1 bar, S0, okay, and I1। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोनों में ही आपको इन्वर्टर देना है, तो दो इन्वर्टर दे दो। दिस विल बिकम S1 S0, ओके, I0। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सर एक बार ये यस हाँ ठीक है सर, हाँ एक बार जो आपने ये लॉजिक सर्किट समझा, एक बार फिर से समझाइए प्लीज। हाँ, भी हमारे पास टर्म कौन कौन सी है? ये हमारे पास S1 है, S0 है। ओके, तो ये क्या है, 0 है, ये S1 बार है, ये S0 बार है, ये S1 बार है, ये S0 है, ये S1 है, ये S0 बार है, ये क्या है, S1 S0 है। ओके, नाउ इसको करना I0 से मल्टीप्लाई, इसको करना I1 से, इसको करना I2 से, इसको करना I3 से। ओके, यानी कि इस एंड गेट में हमको दोनों इन्वर्टेड चाहिए, तो S1 भी इन्वर्टेड होके आ रहा है और S2 भी इन्वर्टेड होके आ रहा है। ठीक है, इस गेट में खाली हमको S1 इन्वर्टेड चाहिए, तो हमने S1 यहाँ से जो S1 इन्वर्टेड है उसको इन्वर्टेड ले लिया उसको। इसमें S0 इन्वर्टेड चाहिए, तो ये S0 का इन्वर्टेड इसमें आ गया। बस ऐसे ही जिसमें जो चाहिए वेरिएबल उसको भेज दिया, जिसमें डायरेक्ट चाहिए उसमें डायरेक्ट भेज दिया, जिसमें इन्वर्टेड चाहिए उसमें इन्वर्टेड करके भेज दिया। समझ आ रहा है? यस सर। ये मेरे पास 4 टर्म है, जिसके अंदर जो चाहिए वो इन्वर्टेड करके उसके अंदर भेज दिया हमने। ओके, अगर इन्वर्टेड नहीं करना, जैसे इसमें इन्वर्टेड नहीं है, तो इसमें सीधा ये S1 लाइन है, S2 लाइन, इसको सीधे भेज दिया बिना इन्वर्टेड किए। सो दिस इज योर नाउ फाइनली क्या करना है, फाइनली सारे जो आउटपुट से एंड को उसको हमको सम करना है। सो वी हैव OR गेट, ओके, OR गेट एंड यू विल गेट आउटपुट। ओके, एंड आउटपुट क्या होगा, इन सबका सम ही होगा। सो S1 S1 I0, okay, plus S1 S0 I1 plus S1 S0 I2 plus S1 S0 I3। ओके, नाउ ये तो आपके मल्टीप्लेक्सर्स हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लेक्सर का यूज क्या है? तो सबसे पहला यूज तो मल्टीप्लेक्सर का है कि यू कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। कोई भी बुलियन, जैसे लॉजिक गेट से हम करते हैं किसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमिलरली यू कैन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर यू कैन इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन। ओके, दैट्स व्हाई समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ओके, हालांकि खुद गेट से बना हुआ है, ओके, बट इट कैन बी implement any function. Even if you can implement any function, that means you can make any gate out of this multiplexer. Okay, multiplexer can work as an AND gate, NAND gate. Okay, so that's why you can create any boolean function using this multiplexer. Okay, so let us solve some problem. Okay, then this will be clear. So shall I rub this one? Yes, sir. No sir, let me write this y1. Okay, so basically your multiplexer is a logic function generator. Okay,
So this is a logic function generator or it can implement logic function. अभी हम करेंगे function generator. So हाँ सर बोलिए। सर मल्टीप्लेक्सर में हम सभी इन इनटू वन बनाते हैं, मतलब आउटपुट सभी का वन ही होगा, आउटपुट वन नहीं है। हम इस पैरामीटर्स को कंट्रोल करके सेलेक्ट लाइन से हम लोग इनपुट को कंट्रोल करते हैं। सारे इनपुट जाते नहीं है। जो हमारे पास डेटा है ये सब पैरेलल डेटा है। ओके, ये सारे पैरेलल डेटा सीरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एक बार में एक ही डेटा जाएगा, बाहर जाएगा। सर सेलेक्ट लाइन को याद करने के लिए मतलब एज अ लोकल लैंग्वेज में क्या बोले? डेटा सेलेक्टर। ओके, डेटा सेलेक्ट कर रहा है ना भी, इसी की वैल्यू पे जैसे आप उसको 0 0 रख दोगे तो खाली आई नॉट आएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं, ओके, या ये वेरिएबल्स हैं, यही तो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा आउटपुट आएगा। ठीक है? ओके, मीन सर ये इनपुट को सेलेक्ट करके आगे आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आउटपुट भेजते हैं। कौन सा इन चारों में से कौन सा जाएगा, that will decided by the value of this S1 S0। सर एमएसबी और एलएसबी को कौन कैसे समझे? वहाँ पे एमएसबी होगा, कौन सा एमएसबी? वो सर्किट में वो जो डायग्राम होगा उसमें लिखा हुआ आएगा। समटाइम भी जो नंबर होता है ये S0 होता है, वो LSB होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सिमिलरली ये ABC होता है, वो उसमें जो पीछे होगा वो LSB होता है, जो ये होता है MSB होता है। और सर्किट में निशान लगा हुआ होता है, कई बार लिखा हुआ होता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें नोटेड होता है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये आपका 1 है, ये आपका 0 है। ओके, तो पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिजाइनिंग के क्वेश्चन करेंगे। पहले तो सिंपल आउटपुट कैसे निकालना है। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर दे रखा है, ठीक है, उसका आउटपुट कैसे लिखना है। सपोज ये मुझे दे रखा है 0 1 ओके 2 3 और BC दे रखा है। ओके, एंड वी हैव दिस 0 is connected to ground, okay, 1 is connected to A, 2 is again connected to ground, okay, 3 is connected to 1, 3 is connected to 1। समझ में आ रहा है ना? पहला ग्राउंड है, दूसरा A से कनेक्टेड है। आप सीधा खींच देना, मैंने सीधा नहीं खींच रहा हूँ। A, ओके, द सेकंड इज ग्राउंड एंड थर्ड इज कनेक्टेड टू 1। ओके, इसका मतलब ये वैल्यू है, फर्स्ट इनपुट की वैल्यू 0, सेकंड इनपुट की वैल्यू A, थर्ड इनपुट की वैल्यू 0 एंड फोर्थ इनपुट की वैल्यू 1। द वैल्यू इज गिवन and you get output. So C says what is the value of output? Select line is BC. Okay, और जब भी यहाँ पे select lines हो, okay, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल हो, तो ये जो वेरिएबल होगा ये ये होगा MSB होगा, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा। ओके, फिर ये वाला A, पहले ये, फिर ये। ओके, अब यहाँ पे एक क्यों गया वो भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख लो, सिंपल वैसे। अभी ये चलेगा। रिपीट कीजिए सर, प्लीज रिपीट दिस वन। ये आपका ये होगा, जैसे 2 वेरिएबल से तीसरा वेरिएबल यहाँ पर है, जो वेरिएबल यहाँ पे होगा एक्चुअली ये वेरिएबल सेलेक्ट लाइन से इधर गया है। ओके, जब हमको जैसे मुझे 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, अब वो क्वेश्चन में बोल देगा कि 16 into आपके पास 4 वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन ये बोलेगा कि आपको 8 into 1 से बनाओ। ओके, जैसे ये अभी जैसे अभी ये है, जैसे इसमें 3 वेरिएबल है, तो ये इसको मल्टीप्लेक्सर को 8 into 1 से बनाना था, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 8 into 1 से नहीं, तुम 4 into 1 से बनाओ, इम्प्लीमेंट करो। तो क्या करते हैं उस कंडीशन में, हमारे पास वेरिएबल कम पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इस सेलेक्ट लाइन को उठा के वेरिएबल बना देते हैं। ओके, अभी करेंगे क्वेश्चन। अभी तो ये जो ए गया है ना, ये यहीं से गया है, तो सेलेक्ट लाइन ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। लगाया तो हाँ, नीचे ही क्यों नहीं कनेक्ट किया, मतलब सारी सिलेक्ट लाइन। अरे वो अगर 8 into 1 को 4 into 1 से करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ता है। अभी इसमें पहुंचा नहीं अभी तक, पहले तो इसको फंक्शन निकालना सीखो,
फिर उसमें बताएंगे। अभी अभी खाली पहले आउटपुट निकालना सीखो, ठीक है। तो नाउ इफ आई वांट टू राइट आउटपुट, आउटपुट कैसे रखेंगे? हमारे पास सेलेक्ट लाइन BC है, अभी जो 4 to 1 ही है BC, ओके। फिर क्या आता है? BC के साथ में क्या आएगा? BC के साथ में आएगा आपका I0, फिर I1 के साथ में क्या आता है? 0 0 0 1, ओके। सो आपको क्या आएगा? B bar C, then 1 0, that means I2 B C bar, and the I3 will be what? BC. ना I0 की वैल्यू आपको दे रखी है, I0 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0. दिस टर्म बिकम 0, so this becomes 0 B bar C bar. I1 की वैल्यू आपको A दे रखी है, this become A B bar C, okay. And then you have I2 की वैल्यू 0 दे रखी है फिर से, तो this becomes 0 into BC bar, okay. Then I have I3 is 1, okay, so this becomes BC. So if I finally simplify the function, this function, okay, will be what? A B bar C, A B bar C plus BC प्लस BC plus BC. BC, वेरी गुड, ओके। नाउ इसको मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखो, मिन टर्म्स के फॉर्म में। नाउ मतलब एसओपी था ही ना, तो इसको लिखो कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मलाइज फॉर्म में। सो दिस इज माय फंक्शन, ओके। तो शैल आई इरेज दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. So now you want to write F A B C, okay. So this is F, okay, A B C. You can write Plus A plus A bar B C, okay. Yes. This become A B C plus A B C plus A bar B C, okay. Now you can identify the mid terms, okay. कौन सी मिड टर्म है? M कौन सा है भी? अगर ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे या तो नंबर लिख के देखो, या तो फिर के टेबल बना के देखो, के में बना के देखो। 1 2 3 A B C, okay. This is 0 0 B bar C bar. This is 1 this is 0 1 B bar C. This is 1 1 B C. This is what? 1 0 B C bar. This is 0 1 A bar A, okay. और टर्म देखो A B bar C, तो A B bar C यहाँ आएगा 5 पे आएगा। ABC कहाँ पे आएगा? A B C यहाँ पे आएगा एंड A bar B C यहाँ पे आएगा, ठीक है। So this becomes 0, this position is 0, this position 1, this position 3, this position 2. So you have what? You have F is equal to summation M 3 5 7 3 4 5 6 7 6. So this is your, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लिख के देख लो, जैसे बताया था मैंने, ये 1 0 0, तो ये क्या हो गया? 0 0, ये 4 पोजीशन, ये 4 हो गया। ये कितना कौन सी पोजीशन हो गई है? 101 सर। 1 0 1, ओके। ये फिफ्थ पोजीशन हो गई। 1 1 1, 7th पोजीशन हो गई। 0 0 1 1, ये थर्ड पोजीशन हो गई। तो 3 5 7, ओके। सो दिस इज फंक्शन इज 3 5 7, ओके। तो क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, ये कौन सा फंक्शन है? एम नंबर दे रखे थे अलग, तो ये ऑप्शन दे रखा था, तो ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन गेट ईसी में आया था, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। Yes. Wait, sir, don't run. सर ये जो सेकंड आपने बनाया कि वैल्यूज रख के देख लो, तो ABC को 1 1 लिया, फिर ऐसे डायरेक्ट करके देख लिया। उसमें आपको ABC इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, और फिर ABC इक्वल्स टू मतलब तीनों को 1 करके इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है वैल्यूज। हाँ क्या आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, जैसे सिस्टम का नंबर क्या है, सिस्टम का नंबर क्या है? A 0 1, तो ये 1 0 का मतलब क्या होता है? ये 1 0, ये क्या है? 4 5 है। डिजिटल डेसिमल नंबर क्या है? 5 है इसका। यस सर, ऐसे देखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। So second question is, अब मल्टीप्लेक्सर आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और बाद में भी चलता रहेगा ये, क्योंकि
क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डेटा है ना, ये इससे कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। बी से हाफ बनाओ, हाफ सबसेक्टर बनाओ, कुछ भी बोल दे, गेट नैंड गेट बनाओ, नॉर गेट बनाओ, तो ये चलता रहेगा बीच बीच में भी, ठीक है। सो नाउ वी गिवन 0, ये डेटा है, ओके, 1 2 ओके 3 and they have given one AND gate here, A इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, ओके, B C निकालो, फंक्शन निकालो। तो आउटपुट क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? A bar B bar C bar A बार B बार C बार, वेरी गुड, plus A bar A B bar C A B बार C plus A B plus C bar फिर A A B C bar A B C बार एंड लास्ट plus A B C वेरी गुड, ओके। सो तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, मिन टर्म्स में लिखा ही है, उसको के मैप में सॉल्व कर दो, ऑलरेडी रिटर्न है मिन टर्म्स, ओके। सो इसको के मैप बना के सॉल्व कर दो, या वैसे सॉल्व वैसे कर दो, सॉल्व करना है। 1 2 3 A B C, ओके। सो ए बार यहाँ पर 1 है, ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है क्या? yes sir 0 5 6 अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो सॉल्व होगा नहीं, yes ये फर्स्ट सॉल्व होगा ही नहीं। ए बार बी बार सी बार, फिर यू कैन मेक ग्रुप पेयर, एक ये बना दो, एक ये बना दो, ओके। सो अगर ये बना रहे हो तो हाँ, सो दिस इज A0 फंक्शन लिखना है सर, हाँ सर फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखना है खाली, फंक्शन लिखना है ना। तो ये टर्म तो इसके लिए तो ये टर्म लिख दिया हमने, इसके लिए तो हमने ए बार बी बार सी बार लिख दिया, और इसके लिए क्या लिखूं मैं, ये है आपका 0 1, ये है 1 1, तो इस टर्म के लिए आपका सी कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, तो ये इस टर्म के लिए ए सी आ जाएगा, और इस टर्म के लिए क्या आ जाएगा 1 1 1 0, तो बी कांस्टेंट है। इसमें मिन टर्म नहीं लिखना है क्या? ए बी नहीं, बस मिन टर्म तो लिखा हुआ ही है ना ऑलरेडी, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, और इसको के में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए सी, मिन टर्म से नहीं पूछा इस बार, मिन टर्म से पूछा तो मिन टर्म तक जाना है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में मिन टर्म ही दे रखा तो मिन टर्म तक जाना है, और नहीं अगर सॉल्व करके दिखा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। सो दिस बिकम ए सी प्लस ए बी, ये आ जाएगा, चेक करो, ओके यस सर यही आ रहा है। हाँ, तो ये तो हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट लिखना। अब अगर आउटपुट दे रखा है और मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करना पड़े, ओके, मतलब मैंने बोला ना कि मल्टीप्लेक्सर किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता है, तो अगर वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार, वो भी आसान ही है सर। हाँ सर इसमें एक चीज नहीं है, ये मतलब जैसे मान लो सेकेंड टर्म आदमी लिख रहा है, ए बी बार सी इंटू 1 होना चाहिए ना। वन क्या, वन कहाँ से है? सर आई नॉट I1 I2 I3। हाँ हाँ, फिर तो उनका तो उनका वैल्यू दे रहे हैं ना भी, जैसे आई नॉट का वैल्यू क्या ए बार है, I1 का वैल्यू ए, I2 का वैल्यू ए, I3 का वैल्यू भी ए। ओके सर, ओके सर, करेक्ट, वो करेक्टेड है ना डायरेक्ट, वो मतलब वही दे रहा है एक्चुअली। यस सर। Now suppose I want to implement a function, say I have a function, I have given truth table, okay, so S2 S1 S0, देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मोस्ट MSB है, तभी S2 S1 S0 आ रहा है, ओके। So now 3 variable 0 0 0 0 1 1, नीचे दिख रहा है क्या, 1 1, okay. So now this becomes 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1. Okay, these are select lines. Okay, and the output is given f is given 0 1 1 0 1 0 0 1. आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा आउटपुट है, ये क्या चीज है? कैन यू आइडेंटिफाई? जब देख के बता सकते हो कि कौन सा ये फंक्शन क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लेक्स। हाँ, एक्सॉर ए बी सी एक्सॉर है। तो एक्सॉर गेट में क्या होता है? कैपिटल कर देना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो एक्सॉर गेट्स में क्या होता है कि जहां पे भी ऑड नंबर 1 आएगा वो 1 आएगा। ओके, जहां पे भी इवन नंबर 1 आएगा वहां 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 0 1 है ही नहीं, ऑड नंबर 1। ओके, सो यू गेट 1। ओके, ऑड नंबर 1 यू गेट 1, इवन नंबर ऑफ 1 यू गेट 0। यार एक 1 है, ये 3 1 है, यू गेट 1। सो जब भी ऐसी टेबल हो एक्सॉर की होती है। ओके, नाउ यू हैव गिवन दिस फंक्शन इज गिवन, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। ओके, तो इसके लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगेगा? इस फंक्शन के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगेगा? सर 8 by 1 8 cross 1 8 into 1. Okay, 8 cross 1. We can draw it by 4 cross 1 also, that we'll see later. Okay, so first we'll see 8 cross 1 multiplexer. So now you can you write this f in terms of minterms? Can you write f in terms of minterms? यस सर। यस सर। हाँ बताइए सर मिनटर्स में तो है सर। नंबर बताओ यहाँ पे। एक मिनट लिखा ही तो है 1 2 4 1 2 आएगा सर, 2 आएगा, फिर क्या 4 है, 10 7। सर। Okay, so 1 2 4 7 है। ओके, 1 2 4 7। ओके, नाउ ये मैं टेबल मिटा रहा हूँ, आपके पास टेबल बनी रहेगी। ठीक है ना, ये टेबल आपके पास बनी रहेगी, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ मुझे बना के रखने पड़ेगा, समझाएंगे। ओके चलो ठीक है। नाउ आई हैव टू मेक मल्टीप्लेक्सर, ओके, टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। ओके, सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, हाँ सर वी मेड मिस्टेक। what happened? Oh no, I guess no. It's Okay, now this is what, this is 1 into 8 multiplexer. That means there should be 8 input lines. Okay, so I start with 0 1 2 3 4 5 6 7. This will be 8. Okay, and there will be 3 select lines. Okay, there will be 3 select lines. Okay, so I can put here A B C, यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। I have 3 select lines A B C, because this is a 3 variable function. Okay, now I have to draw the, and it will be output f. Okay, now you see the position 1 2 4 7. Okay, so these are the minterms for which output is one, for which the function value is 1. Okay, so now these position 3 that's not 3, this is 1 1 2 4 7. These position will be connected to 1. Okay, these position will be connected to 1. Remaining all 0 3, okay, 5 6, these will be connected to 0. Okay, now you can check. Okay, you can write here I0 also. You can also write I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7. Okay, now now suppose if I say I am putting A B C. Okay, I am putting A B C. Okay, 0 0 0, then my function value is in two table what, 0 na, 0. Okay, now when you put A B C equal to 0, you got F0. In multiplexer, when you put A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0, what is the output? What is the output? I naught होता है ना? Yes sir. Sir, I not into A bar B bar C bar. तो वो तो बोल दिया मैंने. If the value is 0, A bar B bar C bar,
Now if a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0, तो ये 1 नहीं हो जाएगा क्या? a बार b बार c बार, आउटपुट क्या मिलेगा? I नॉट. यस सर, आई नॉट. ठीक है ना, आउटपुट ऐसे होता है. तो f is I नॉट. Now I नॉट is connected to what? 0. That means the function value is 0. 0. जो वैल्यू ट्रूथ टेबल से आ रही है फंक्शन के, जो ट्रूथ टेबल से फंक्शन से वैल्यू आ रही है, ओके, हमारा जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था वही वैल्यू ये भी दे रहा है. तो दैट मींस इट इज सेटिस्फाइंग द ट्रूथ टेबल. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस फंक्शन इज इंप्लीमेंट बाय दिस मल्टीप्लेक्सर. समझ में आ रहा है ना? इसमें कुछ और वैल्यू लिख के देख लो, 0 0 1. ओके, so you put 0 0, a is equal to 0, okay, b is equal to 0 and c is equal to 1. Okay, so when you put this condition, okay, then you get what? Which output? You get I1. Okay, I1. Yes. or I1 is connected to what? 1. Okay, so you get f equal to 1. और यहाँ पे भी क्या है? ये फंक्शन से भी क्या है? ट्रूथ टेबल में भी 1 है. You got my point? What I'm trying to say? Yes sir. Yes, sir. This function can be implemented by this multiplexer. Okay, so this is 1 into 8. Okay, so this is the example. So in this way, if you have 8 variables, okay, you can simply, which are the min terms are present, you can put them 1, other all there are 0. So you can represent, अगर 8 है तो 1 into 8 multiplication you can represent. It's very simple. Just write min terms. जो min term present है उनको 1 से कर दो, बाकी को 0 से कर दो. Clear? Yes sir. ओके, नाउ अब थोड़ा अब थोड़ा उल्टा जाते हैं. अब जो क्वेश्चन में किए ना उसको करने का शॉर्टकट बताता हूँ मैं. मल्टीप्लेक्सर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं. नाउ दो क्वेश्चंस हैं. ओके, द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज f a b c. फर्स्ट डिजाइनिंग का है f a b c d. Okay, now I have given a function m 1 2 5 7 9 14. Okay, this is a 4 variable function. It says 4 variable function. तो इसके लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगेगा? 16 into 1. 1 to 16 to 1 ना. So but it says Yes sir. implement using 8 into 1 max. और ये बोल रहा है कि इसको 8 into 1 से इसको implement करो. ओके, तो इसको करने का सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे. You make table. इससे क्या है, सारे क्वेश्चन जो पिछले भी कराए ना वो भी 1 मिनट में हो जाएंगे बिना कुछ करे. ओके, सिंपल से. सो नाउ यू हैव टेबल. ओके, सो यू हैव I नॉट I1. 8 into 1 में कितना होगा? 8 ही डेटा होंगे ना. सो I2 I3 put I4 I5 I6 I7 I8 I7 तक ही जाएगा. टोटल 8 हो गया ना. I7. okay, up to I7. Now the next column, next row will be what? Okay, now what you do, you write here, अभी clear हो जाएगा, a dash a bar, you write a here. Okay, and so a bar a, so this become one more column और इसके नीचे एक और कॉलम बना, नीचे जा रहा है. Okay, so I'll make थोड़ा सा छोटा पतला बना देते हैं इसको. So you have this a bar, okay, then you have this a, and then you put one more here, one more column here, this one. Okay, now what you do, so you have 16 terms here. Okay, I have written only 7. So अब क्या करना है, जो present है
उसको लिख दो। तो प्रेजेंट कौन सी है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज योर 1, so this is 0 1 2 3 4 5 6 7, this is your 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। अब प्रेजेंट कौन सा है, 1 प्रेजेंट है, 1 पे गोला मार दो। 2 प्रेजेंट है, 2 पे गोला मार दो। 5 प्रेजेंट है, 5 पे गोला मार दो। 7 प्रेजेंट है, 7 पे गोला मार दो। 9 प्रेजेंट है, 9 पे गोला मार दो। 14 प्रेजेंट है, 14 पे गोला मार दो, ठीक है। अब क्या करो, जिस जिस कॉलम में एक भी गोला नहीं है उसको लिख दो 0, ठीक है। जिसमें दोनों पे गोला है उसको कर दो 1, जिसमें ऊपर गोला है उसमें कर दो A', ओके। जिसमें कोई कोई गोला नहीं है 0, कोई गोला नहीं है 0, ऊपर ऊपर है A', नीचे है तो A, फिर ऊपर है तो A', ये लिख दो, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कितने रिवर्स में कितने आसान हो जाएंगे। तो अब करना क्या है आपको, अब आपको आई नोट को जोड़ना है 0 से, I1 को जोड़ना है 1 से, आई नोट को जोड़ना है A' से। ये आप जब बनाओगे ना वो 8x1 टेबल कॉलम, यस सर, अंडरस्टैंड सर। बस अंडरस्टूड। I4 को 0 से कनेक्ट करता है, जैसे जैसे अभी 1 0 से किया था, ओके। ये अभी दिखाओ क्या? अभी अभी ऐसे कर देना, बस उनसे कर देना कनेक्ट। तो ड्राइंग कर देते हैं उसका। तो मेरे पास क्या है, दिस इज माय 8, ओके। सो आई हैव 0 1 0 1 2 3 और आई नॉट जो भी है 4 5 6 7, ओके। 7 है, दिस इज माय 8 into 1, 8 into 1 मैक्स, ओके। नाउ आई नोट को करना है, किससे हमको करना है, आई नोट को करना है हमको 0 से। आई नोट 0 से कनेक्ट हो गया। 1 को किससे करना है हमको, 1 से करना है, ये 1 से कनेक्ट हो गया। 2 को किससे करना है हमको, 2 को हमको 8 से करना है, ये 8 से कनेक्ट हो गया, ओके। फिर 3 को कैसे करना है, 0 से करना है, ये 3 को 0 से कर दिया, ओके। फिर 4 को कैसे करना है हमको, 0 से करना है, ये 4 को 0 से कर दिया। 5th को करना है A बार से, तो 5th को A बार से, ये A बार ही था, A बार से 5th को A बार से कर दिया। फिर 6 को करना है हमको A से, तो A लेकर जाओ, ठीक है। और 7th को हाँ, और 7th को करना है A बार से, ए बार A बार से करना है, ठीक है। यस सर। बस बस इतना ही करना है। और आपका जो वेरिएबल कितना है, B C D, ठीक है। तो अभी अभी आपने क्या किया, आपके पास 4 वेरिएबल थे, 4 में से B C D आपने यहाँ रखा, एक उधर ले गए, समझिए। यस सर। जो पीछे क्वेश्चन में A बना हुआ आ रहा था ना, एक्चुअली वो इस कारण से आ रहा था, बिकॉज यू आर हायर मल्टीप्लेक्स को लोअर मल्टीप्लेक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी A चला गया, अब जरूरी नहीं A, आप कोई भी ले आ सकते हो, B C D कोई भी ले आ सकते हो, ओके। तो जनरली क्वेश्चंस में जो दे रखा होता है, ओके, उसी को फिर MSD मान लेते हैं हम लोग लिखते समय। वैसे तो अब D, वैसे तो कई कई बुक्स में जो D है उसको ले जाते हैं उधर, जो मोस्ट आपका LSB होता है, ओके, LSB होता है उसको ले जाते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन ब्रिंग एनी B C D, you can take there, some book will take D, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब ये तो एक तरीका हुआ, सीधा तरीका। अब इसका उल्टा तरीका देखो क्वेश्चन सोल्व करने का कितना फास्ट हो जाएगा। सपोज इफ आई हैव हाँ, मैं इसको ये लिखा हुआ ही है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे अभी भी दे रहा था पहले, वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आई हैव टर्म्स I नॉट 1 2 3, ओके। नाउ I नॉट इज कनेक्टेड टू A, ओके, एंड this is connected to 1, okay, this is connected to 1 and this is connected to 0 and this is your S1, this is your S0, okay। इस टेबल को रब कर दो क्या, यस सर। यस सर। अब देखो आपको ये तो 8 की टेबल थी, अभी 4 की टेबल बनानी है। अब ऐसे कैसे उल्टा रिवर्स में 4 की टेबल बनाओ, रिवर्स में 4 की टेबल बनाओ। अभी 4 है, 4 है, जस्ट मेक I नॉट I1, ओके, I2 I3 बना दो, ओके। एंड यू कैन राइट 3 वेरिएबल्स है I नॉट, सो यू पुट I3, सो पुट 0 1 2 3, you put 4 5 6
7 ऐसे लिख दो। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ए बार, यहाँ आपको लिखना है ए। अब करना क्या है, सर पिछले वाले में हम 1 से 16 नहीं लिखे थे। तो वहाँ पे तो 8 थे ना, यहाँ पे तो ये तो 4 है, वो 8 था तो 16 लिखा, ये 4 है तो 8 तक जाएंगे, 0 से लेकर 7 तक। पहले सर दोनों में एक बार। एक में ए है, ठीक है, इसमें ए। अब देखो I0 किससे कनेक्टेड है, ए से, तो यहाँ लिखो ए, ठीक है। 1 किससे कनेक्टेड है, ए बार से, तो यहाँ लिखो ए बार। अब पता ही है ना, तो 3 कनेक्टेड है 1 से, तो यहाँ लिखो 1। 2 कनेक्टेड 1 से, यहाँ लिखो 1, और 3 कनेक्टेड है 0, तो यहाँ लिखो 0। अब हमको पता करना है फंक्शन क्या है, उल्टा मिन टर्म्स क्या है, समझ में आ रहा है ना क्या मिन टर्म्स। तो कैसे पता करेंगे, जहां पर ए लिखा है वहां गोला मार दो, जहां ए डैश लिखा हुआ है वहां गोला मार दो, जहां 1 लिखा है वहां दोनों पे गोला मार दो, जहां 0 है वहां किसी भी गोला मत मारो। तो आपकी अब मिन टर्म्स क्या हो गई। हाँ हेलो सर। हाँ सर हाँ, ये बोलिए। I4 I5 ये सब रिमूव किस बेसिस पे हो गया है? कहाँ रिमूव हुआ है, लिख तो रहा हूँ अभी मैं। तो I4 I5 ये सब तो नहीं है ना? हाँ तो 4x1 है ना। क्वेश्चन में कहाँ है, अभी तो क्वेश्चन में तो कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ वेरिएबल दे रखा है, ये एक्चुअली 4x1 है, पर हमको फंक्शन लिखना है। ओके, तो फंक्शन लिखने के जैसे मैंने पहले यहाँ से टेबल बनाया था, अब उसका रिवर्स कर रहा हूँ। पहले टेबल थी तो मैंने ये बनाया था, अब ये दे रखा ऑलरेडी। ओके, इससे मैं टेबल बना रहा हूँ। So now if you have 4 terms, you have to write 8 terms. Okay, now you can see ये कनेक्टेड है आई ए से। ओके, ये कनेक्टेड ए से, तो ए कहाँ है, ये 4, ए डैश। ओके, तो ये 1 लिख, ये कोई कनेक्टर 1 है, इसका दोनों गोले, पहले में क्या था, दोनों गोले तो 1 था, और दोनों गोले नहीं थे तो 0 था। ओके, तो आपकी टर्म क्या आ गई, आपकी टर्म आ गई 1 2, ओके 1 2 4 6, ये आपका आंसर हो गया। तो आप तो पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे आउटपुट निकालने के, उसको भी टेबल से करके देख लो आप लोग, इसी टेबल से। हाँ, पर वो लास्ट का मीन टर्म कैसे लिखे वो बताओ, ये समझ में आया सर। मिड टर्म भी मुझे चाहिए, मुझे इस इन सारी टर्म में से कौन सी टर्म बीच, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 दे रखी है, एक वेरिएबल यहाँ चला गया है, तो ऑब्वियसली ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है। ओके, 3 वेरिएबल का फंक्शन है जो भी है, ठीक है ना। ये 1 2 तो 2 तो यहाँ दे रखे हैं, एक यहाँ चला गया है, तो ये 2 into 3 8 मिन टर्म्स वाला 8 वाला फंक्शन है, ये 8 मिन टर्म्स होंगे इसमें। तो मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब फंक्शन में प्रेजेंट कौन से हैं, तो I0 कहाँ है, I0 किससे कनेक्टेड है, ए से। जैसे पहले तो उल्टा किया था ना हमने, I0 से ए को किया, अब ए को I0 से। सो सिमिलरली दिस इज कनेक्टेड टू ए बार, दिस 2 इज कनेक्टेड टू 1, 3 कनेक्टेड टू 0। अब पहले मैं, अब क्या करना है, जहां पर नीचे गोला है, नीचे गोला कहाँ है, ए। ओके, सो ये दिस ए 4। ओके, ए मतलब क्या है, नीचे गोला। ओके, ए बार मतलब ऊपर गोला, ये वाला। ओके, सिमिलरली 1 में दोनों गोले, 0 मतलब कोई गोला नहीं, तो मैंने गोले कर दिए 1। so now this 1 2 4 6, these are your terms। जो पहले किया उसका एग्जैक्ट रिवर्स किया है। पहले क्या कर रहे थे, दोनों गोले हैं तो 1, एक कोई गोला नहीं तो 0, ऊपर वाला गोला है तो ए बार, नीचे वाला गोला है तो ए, तो वही तो किया है अभी भी। अगर ए है तो नीचे वाला गोला, ए बार है तो ऊपर वाला गोला, 1 है तो दोनों गोले, 0 है तो कोई गोला नहीं। अब जिस भी गोला हुआ है वो मेरे टर्म्स है, 1 2 4 5, दिस इज माय फंक्शन। तो ये शॉर्टकट तरीका है करने क्वेश्चन करने का, ठीक है। अभी यहाँ तो 4 into 1 है, और भी आ जाएगा 8 into 1, कुछ बड़ा फंक्शन में आ जाए तो एक झटके में इससे आप निकाल सकते हो। तो पिछले जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, उसको भी इसी से करके देखो, तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप उस पर कंफर्टेबल हो तो उससे करो, मैंने दोनों तरीके बताए हैं। अगर आप सिंपल बेस सॉल्व करते जैसे हमने सॉल्व किया था पहले, जैसे फंक्शन वाई लिख के मल्टीप्लाई करके जो किया था हमने सॉल्व, if you want to solve that way you can solve that way, either you can directly solve this way also। Is it clear? Yes sir। Yes, sir. Okay, so I'm stopping here, I will send some questions more। Okay sir, practice। आपने 16x1 को 8x1 से सॉल्व किया है और 8x1 को 4x1 से सॉल्व किया yes है, very good। तो हमेशा हाफ से ही मतलब हो सकता है ये क्या 16 into 1 का 4 into 1 से हो सकता है? वो भी हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। उसमें फिर एक यहाँ पे 2 वेरिएबल लगे रहेंगे, ठीक है।
तो वो क्वेश्चन देखेंगे अभी आएंगे तो आई एम स्टॉपिंग हियर। Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. सर ये